हमरा गैया के तबे कल्याण होई। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। हर घर में रोजी रोजगार होई। आर्थिक जरूरत के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए, जाति आरक्षण नहीं होनी चाहिए। आरक्षण हर एक जाति में मिलना चाहिए। जो गरीब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो अमीर है उनको आरक्षण क्यों? पर लालू प्रसाद कहते हैं कि इससे लड़ाई होगी पिछड़ों और फॉरवर्ड कास्ट के बीच में। राजनीति कर रहे, जाति राजनीति कर रहे हैं। रोजगार होई। Hello and welcome once again to Ground Zero Bihar, where our travels through this election battleground state is now taking us into the heart of Mithilanchal in North Bihar, particularly Samastipur and Darbhanga. This is an area which is rich in political tradition, traditionally dominated by the Socialist Party. In 2010, the Janata Dal United BJP combine had swept this region, as indeed they swept much of Bihar. In the 2014 Lok Sabha elections, the BJP and the Lok Janshakti Party picked up seats here. What's going to happen in 2015? As I said, it's an area rich in political traditions, which is why I thought we would start here in Karpuri Gram, the birthplace of the former Chief Minister of Bihar, Karpuri Thakur. In many ways, it's his legacy that has endured above all else. He was the architect, in a sense, of the Mandal report, and it's his pressure to ensure reservations for the backward castes that really changed the political map of Bihar. Who really can capture the Karpuri legacy best? Perhaps that will hold the key to what happens in Mithilanchal and indeed in this Bihar election. Come with me. सही है, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ना, आरक्षण तो होना चाहिए, चूंकि पहले से ही है, ये अभी तो हुआ नहीं है। ये आर्थिक मुद्दों पर होना चाहिए या ये होना चाहिए? आर्थिक मुद्दे पर होना चाहिए। हर आदमी को ये जो है ना आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हर आदमी को नहीं मिलना चाहिए जिस तरह से। तो जो कर्पूरी ठाकुर जी तब कहते थे और अब में फर्क है? फर्क है। क्या फर्क है? पहले का जो जनरेशन था और अब में बहुत बदलाव आया है, उसी हिसाब से है। आप लिट्टी चोखा बना रहे हैं? हाँ, ये कैसे बना? खा रहे हैं लिट्टी चोखा सर। अच्छा, मैं तो जाने वाले, आई एम गोइंग टू समस्तीपुर टाउन टू हैव लिट्टी चोखा, बट बिफोर दैट आई वांट टू ये बताइए, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किसके आधार पर? आधार बस जाति के आधार पर? जाति उति पर नहीं, कुछ सुरक्षा ऐसा होना चाहिए जो बाल बच्चा भी अच्छा हो, उसका काम धाम अच्छा हो। यहाँ तो इतना चीज आते हैं लोग, लेकिन यहाँ से स्टेशन तक एक पानी का साधन नहीं है, कल नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये बताइए, आप कर्पूरी ठाकुर के गांव में हैं, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति पर नहीं होना चाहिए। जाति जो पिछड़े हैं उनको मिलना चाहिए, पिछड़ों को मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी ने, आप इसी गांव में उसी पवित्र स्थल पर हम लोग बैठे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने मंडल रिपोर्ट लागू किया था। क्या आपको लगता है वो मंडल रिपोर्ट जायज है या नहीं? उनका किया हुआ हर चीज सही था और सही होगा, लेकिन इसकी समीक्षा भी तो समय समय पे करनी चाहिए ना। हाँ, यानी आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। अगर मान लीजिए आरक्षण के तहत वो इस लायक बन गया है कि वो आरक्षण नहीं ले सकते, तो इसकी तो समीक्षा होनी चाहिए ना। बिहार is very clear. You cannot do away with reservations. The question is, how will you implement them? How will you monitor them? And what will be the criteria? Will it be, as some are suggesting, purely on the basis of economy and economic reasons? Or will it be purely on the basis of caste? That's the debate which will carry on not just in this election, but beyond it. We still have a very long day ahead, and before we proceed from Samastipur to Darbhanga, I have stopped in this little gully because someone has told me this is the best place to have the Bihari speciality, Litti Chokha. Samastipur is also politically significant. Remember, in 1990, it was here that Lalu Prasad arrested L.K. Advani during the Ram Janmabhoomi Rath Yatra and changed his own political fortunes. That was then. This is now.
Let's first though go and have some litti choka, the best I'm told in town, made by Pawan. Pawan कैसे हो? ठीक है सर। ये बताओ ये लिट्टी चोखा होता क्या है लिट्टी क्या होती है? गेहूं का आटा का इसमें सत्तू और बहुत सारा मटेरियल भरा होता है। अच्छा, तो ये है लिट्टी। द लिट्टी इज बेसिकली a little bit of sattu gram with wheat which is put into a round little ball like this, put on a charcoal fire, and then a hole. इसमें आप ये करते हो ना, छेद करते हो। There's a hole which is put into it. उसका छेद करो, छेद करते हो और this is the thing, meat in it, and उसपे घी डालते हो ना। There's ghee which is then put into it. और चोखा कहाँ है? चोखा, ये चोखा किसका बनाते हो? बैंगन आलू टमाटर। अच्छा, बैंगन आलू टमाटर, ब्रिंजॉल पोटैटो एंड टमाटर का चोखा along with the लिट्टी। घी डाल दो उसमें, घी उसमें डाल दो। ज्यादा घी मत डालो, मैं मर जाऊंगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ऊपर है। ये दाल पे चर्चा थोड़ी करते हैं, ये दाल इतनी महंगी क्यों हो गई है? कहा जा रहा है कि नीतीश जी की सरकार भी कोई कुछ काम कर नहीं रही है, इस पर अब नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं। लोकसभा में घर घर मोदी थे, अभी अरहर मोदी हैं। तो किसको जिम्मेदार रहे, मोदी जी या नीतीश जी को? नीतीश जी जिम्मेदार है, केंद्र में सरकार उनका है, वो जिम्मेदार है। अरे पर यहाँ तो नीतीश जी की सरकार है, केंद्र से उनको सहायता नहीं मिल रहा है जो है। नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, महंगाई के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। हाँ, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, ये केंद्र के हाथ में है ना। नहीं, ये जमाखोरी कौन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार में सर, केंद्र सरकार में केंद्र जिम्मेदार है, पूंजीपति की सरकार है, केंद्र सरकार है जो, इसलिए वो जिम्मेदार है सर। सरकार है, केंद्र सरकार। अरे पर नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है। कुछ पुरुष नहीं है, सब खेल है उसका। जुमला उनका जुमला है, तो आप तो नीतीश कुमार के आदमी लगते हैं यहाँ। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास का। विकास का मतलब क्या है? मैं देख रहा हूँ समस्तीपुर में तो ट्रैफिक भी नहीं है बराबर। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है समस्तीपुर में? ट्रैफिक की समस्या है, जल निकासी की समस्या है और रोजगार की समस्या है। कौन सी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। कहीं किसी कार्यालय में जाइए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। कोई भी साहब, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, वो लोग न समय पर आते हैं, आना समय पर जनता का कोई काम होता है। लेकिन इस चुनाव में एक तरफ है जेडीयू और आरजेडी, दूसरी तरफ है एनडीए। तो इन दोनों के बीच किसको आपको लगता है कौन भ्रष्टाचार कम कर सकता है? भ्रष्टाचार को कोई कम नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, सिर्फ कोई ये सरकार हो। सिर्फ बात नहीं, कोई कम नहीं करेगा, इसीलिए कि काम का सिलसिला ऐसा है। किसी भी ऑफिस स्टाफ के खिलाफ आप कहीं पिटीशन दीजिए तो कहेगा कि आप उसको लिखित रूप में दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे, आपका कहना सत्य है कि क्या है नहीं है, कि ये सब बात वहाँ उठती है। और पैसा दीजिए, तुरंत काम हो जाएगा। ये बताइए, आरक्षण का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है? दाल का मुद्दा है या नहीं है? दाल का मुद्दा तो एकदम दाल का भी मुद्दा तो है ही। किसके लिए आप जिम्मेदार ठहराते हो, नीतीश की सरकार या मोदी की सरकार को? हम दाल के मुद्दे को हम केंद्र सरकार का दोषी ठहराते हैं, इसलिए कि उन्होंने जो वादा किया वो उनके विपरीत कुछ भी परसेंट हमको सड़क पे, हमको अपने जीवन में देखने के लिए नहीं मिला। जो उन्होंने वादा किया कि महंगाई कम करेंगे, हमें महंगाई कम करने का कहीं कुछ मिला नहीं। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? साहब बताइए। होना चाहिए, लेकिन आर्थिक पे होना चाहिए। मैं जब गांव में जाता हूँ तो कहते पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, आप कहते आर्थिक पर होना चाहिए। आर्थिक जरूरत के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए, जातीय आरक्षण नहीं होने चाहिए। सबका क्या मत है, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन गरीबी के आधार पर होना चाहिए, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हाँ, इसके मतलब है कि हर जात में गरीब और अमीर है। मान लिया जाए हर जात में है, आरक्षण
माने आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोहन भागवत कहते हैं आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, आपको लगता है सही कहा है मोहन भागवत ने? पर लालू प्रसाद कहते हैं कि इससे लड़ाई होगी पिछड़ों और फॉरवर्ड कास्ट के। वो राजनीति कर रहे, जाति की राजनीति कर रहे, वो जाति की राजनीति। ये तो पॉलिटिकल इशू है, पर ये शहर में है, गांव में तो कुछ और परिस्थिति है। पॉलिटिकल इशू है इसलिए कि हर जगह आप लोग जो है सो आर्थिक। बताइए मुझे, जब आप वोट देते हैं आप जाति के आधार पर वोट देते हैं नहीं देते हैं? जाति के आधार पर हम लोग नहीं देते हैं, नहीं। विकास पर होता है, विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब हुआ काम हुआ, रोजगार हुआ, मतलब डेवलप हुआ, हमारा शहर को डेवलप करेगा, देश डेवलप करेगा, उसी के। अब नीतीश की सरकार 10 साल से रही है, नीतीश जी की, उसके पहले लालू जी की थी 15 साल से। कुछ डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, नीतीश के समय में थोड़ा सा डेवलप हुआ है, लालू के समय में तो डेवलप ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो विकास किया 10 वर्ष, उसमें 8 वर्ष भाजपा भी साथ थी। ये हमेशा, और पिछले 2 वर्षों में जो हुआ वो दिख रहा है। 2 वर्षों का ग्राफ देखिए वर्सेस 8 वर्ष का ग्राफ देखिए। सब चाहते हैं कि आर्थिक लेवल पर विकास सबका हो, जो गरीब हो उसको रिजर्वेशन मिले। मॉनिटरिंग हो, हम सही मॉनिटरिंग हो, जो कि सही। यानी आप कह रहे हैं रामविलास पासवान के बेटे या लालू प्रसाद के बेटे को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, तो सिर्फ गरीब को आरक्षण दे। हर वर्ग में गरीब है, हर वर्ग में गरीब है ना, उनकी दुर्दशा अभी खराब है। अच्छा, ये जो आपकी भूमि है समस्तीपुर की, मैं गया था कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में, वो तो कर्पूरी ठाकुर जी की जमीन है, उन्होंने तो शुरू किया था आरक्षण का मुद्दा, मंडल का मुद्दा उन्होंने ही उठाया। बात अलग थी, उस समय अलग था। हाँ, क्या फर्क हुआ तब? अब जो है आर्थिक दृष्टि से हर वर्ग में मैंने जो है सो डेवलप कर गया है। अब बहुत ऐसे है जो अभी मैंने उच्च वर्ग में हो चाहे नीचे वर्ग में हो, जो एकदम आर्थिक दृष्टि से नीचे चले जा रहे हैं, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। केवल जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। सब तैयार है, केवल जाति के आधार पर ना हो। वोट नहीं होना चाहिए, कोई आदमी नहीं दे, जब भी वोट से विकास के आधार पर दे, और मॉनिटरिंग हो। सबसे बड़ी बात है मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा बिहार में। हर लोग जितना भी नेता लीडर आते हैं, हर लीडर जो है सो काम करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग सही से नहीं कर पाते। चलिए मॉनिटरिंग के कारण आज सुबह हमने लिट्टी चोखा के दुकान के सामने हमने आरक्षण पर चर्चा शुरू कर दी। हमने शुरू की थी दाल पर चर्चा, लेकिन अब हो रही है आरक्षण पर चर्चा। समस्तीपुर के जनता, थैंक यू वेरी मच। 6 दिन आने वाले थे, वो तो आ गए, 200 रुपए दाल हो गया। यही अच्छे दिन थे क्या? यही 18 महीना 14 महीना उनकी सरकार हो गई, एक भी काम बता दीजिए कि मोदी ने किया हो। आगे उनसे आप तो मोदी विरोधी लग रहे हैं। चलिए, ये नीतीश और मोदी की लड़ाई जो है और लालू जी की लड़ाई, ये तो होती रहेगी। हमें निकलना है दरभंगा। थैंक यू वेरी मच। वी आर ऑन आवर वे नाउ टू दरभंगा। समस्तीपुर की जनता, थैंक यू वेरी मच। It's taken us just over 3 hours to come from Patna via Samastipur here to Darbhanga finally. It's a journey that used to take as long as 6 hours. One of the great achievements of the Nitish Kumar government is seen to be what it did with roads and highways. But once we were in Darbhanga, I can tell you it was complete chaos because there are no traffic lights. And in a city of 26 lakhs, the 5th largest city in Bihar, there is a sense of complete chaos and crumbling urban infrastructure, much like the rest of Mithilanchal. And nothing exemplifies the situation more or the crisis that this part of the world suffers from than where I am. This is the Lalit Narayan Mishra University, which was set up in 1972 and was once seen as the hub of education in Mithilanchal. Today, like so much else here, it is a university in decline. Okay, we are outside the psychology department of the L.N. Mishra University here in Darbhanga with girls and boys students, and I'm going to ask you the question कि इतनी डिक्लाइन हुई है, लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी उस लेवल की नहीं है जो पहले थी, सही है गलत है? बताइए। हाँ, यूनिवर्सिटी हमेशा से ये यूनिवर्सिटी ऐसी ही रही है, भले ही अब थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्डिंग आ गई है यहाँ पे थोड़ा, स्टैंडर्ड नहीं रही ना, लेकिन नहीं थी हमेशा से थी, बट अब थोड़ा और ज्यादा सुधार आया है। यही कि सेशन कंटिन्यू हो गया है, एग्जामिनेशन रिजल्ट सब आ रहा है, समय पर आ रहा है।
एग्जामिनेशन आता है, रिजल्ट आता है समय पर? नहीं आता है। मेरा 14-16 सेशन है पीजी का, एमएससी का मैं स्टूडेंट हूँ। अभी तक सेकंड सेमेस्टर का भी इंटरनल नहीं हो पाया, तो एक्सटर्नल की बात ही नहीं, जो अभी थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल हो चुका, एक्सटर्नल भी हो चुका है। तो कितने महीने बाद एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ जाते हैं? एग्जामिनेशन रिजल्ट जैसे आज एग्जाम हुआ वो 3 महीने के बाद, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ 3 महीने हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया। अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मेरे डिपार्टमेंट में बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होता है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होता है। प्रोफेसर की कमी है यहाँ पर। यहाँ पर अच्छे प्रोफेसर ने बहुत कमी हो गई है यहाँ पर, ढंग के प्रोफेसर यहाँ पर नहीं है। अभी सब रिटायर हो रहे हैं और नए बहाल होकर के आ नहीं रहे हैं, जिससे कि प्रोफेसर की कमी है। जी जी बिल्कुल। I am being told professors are not there. There are examination results are not declared on time. Sir, the thing is, these are the things. If you compare it from the last 10 years back, if you see the time when the results were coming almost 6 months late or 7 months late, so it is going to be 2 months or 3 months. Now it is going to be so compared to the past, it is slightly better. यहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, जॉब का अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। कैंपस यहाँ पे मजबूरी यहाँ से पलायन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ना कैंपस आते ना प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता कॉलेज। कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं। एमबीए डिपार्टमेंट में भी कैंपस सिलेक्शन नहीं है। यहाँ एमबीए डिपार्टमेंट में भी कैंपस सिलेक्शन नहीं है। बाहर जाकर कुछ करना चाहेंगी? क्या करना चाहेंगी आप? साइकोलॉजी की डिग्री कर रही है, क्या करना चाहेंगी? टीचिंग करना चाहेंगे। आप टीचिंग करना चाहेंगी। आप क्या करना चाहेंगे? साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। अरे वेरी गुड। आप में से कितने आईएएस बनना चाहते हैं? आईएएस की एग्जाम के कितने लोग देना चाहते हैं? कोई देना चाहता है कि नहीं? एक जमाने में तो बिहार के सब लोग आईएएस देना चाहते थे। आप आईएएस देना चाहते हैं? एग्जाम दिए भी हैं। हाँ, कितनी बार दिए हैं? एक बार दिए हैं, एक बार। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो समझते हैं आरक्षण होना चाहिए एजुकेशन में? होना चाहिए या नहीं? आरक्षण होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, एक स्तर पे होना चाहिए आरक्षण। एक आर्थिक मुद्दा पे आरक्षण होना चाहिए। जो गरीब है एक बार जो आरक्षण उठा ले जिसकी परिवार, उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति उसका बनाया जाए ना, आर्थिक स्थिति बनाया जाए ना, आर्थिक आधार पर दिया जाए ना। या तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण सब में भी इधर गरीब है ना, ऐसा तो थोड़ी है जो किसी। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये जो आरक्षण का जो फायदा है, ये क्रीमी लेयर्स उठा रहे हैं उस आरक्षण के जो आते हैं, जो एक्चुअल जिनको फायदा मिलना चाहिए उनको आज भी नहीं मिला। आपके कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर सही है या वहाँ भी प्रॉब्लम है? महाराजा जमाने से जो बिल्डिंग बना हुआ है वही 10 का 10 बना हुआ है, वही डिपार्टमेंट, वही टेबल, वही कुर्सी। ये महाराजा के जमाना की बिल्डिंग है। उसका बिल्डिंग देखिए, महाराजा का बनाया हुआ है। ये कितने साल पहले की बिल्डिंग है? हम लोग 78 ईयर्स ओल्ड है बिल्डिंग। 70-80 ईयर्स ओल्ड की बिल्डिंग है। भूकंप रोधी महल यही है, भूकंप रोधी महल यही है। 1935 में मेरे पापा सब इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अभी मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। यही हमारी यूनिवर्सिटी की खासियत है। और तब और अब में कोई फर्क नहीं हुआ बिल्डिंग में। और टीचर भी जो थे इंटर में थे वो रिटायर कर गए, और पुराने टीचर जो है उनको पुराना ही नॉलेज है, नया नॉलेज कुछ भी नहीं। तो ये डिग्री करने के बाद आप करेंगे क्या? आप करना क्या चाहेंगे? सर आप बताइए, करना क्या चाहेंगे डिग्री के बाद? जी, यहाँ तो मैं 2004 से एमबीए का छात्र रहा हूँ। 2004 से 4-6 सेशन में। और उसके बाद यहाँ कोई भी प्लेसमेंट नहीं आया। उसके बाद मैं अभी एक प्राइवेट कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब कर रहा हूँ। नहीं तो कोई यहाँ कोई प्लेसमेंट के लिए नहीं आता है? नौकरी नाम का कोई चीज नहीं है, कोई बहालियां वगैरह नहीं है, और नौकरी किन्हीं को नहीं मिल रहा है, सिर्फ ढकोसला ही ढकोसला। लेकिन एडिशन अगर देखा जाए तो फैकल्टीज बहुत सारे स्टार्ट हुए हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहले नहीं थे। एक भी वोकेशनल दरभंगा में नहीं खुली है। नहीं, आप हमें जो यूजीसी आती है वोकेशनल, एक भी दरभंगा नए फैकल्टी खुले हुए हैं। एक भी वोकेशनल का एक भी नया वोकेशनल का कोर्स नहीं आया है जो यूजीसी से आता है। हमको नहीं लगता है जो यूजीसी से 10 साल से एक भी नया वोकेशनल कोर्स आया है। एमएससी एमबीए करके लड़के लोग बैठे हुए हैं, आप कितना कोर्स लेके क्या करेंगे हम लोग? एमएससी एमबीए करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े कंपनी में कैंपस होता है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो डिग्री लेके क्या करेगा यहाँ आदमी? वोट लेने के लिए तो जनरल ओबीसी SC ST कास्ट नहीं देखते, लेकिन वोट लेने के बाद जब कुछ बन जाते हैं तब क्यों जनरल को छांट देते हैं, फेंक देते हैं? अपने जैसे लगता है पहचान भी नहीं है। लड़कियां तैयारी कर करके या इंटरव्यू तक पहुंच चुकी है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है जनरल होने के कारण। एजुकेशन को लेकर दरभंगा के नेताओं को क्या कहेंगे, बिहार के नेताओं को क्या कहेंगे? हम लोग को चाहिए रोजगार, वैकेंसी दे, हम लोग भरेंगे, हम लोग को रोजगार होगा। हाँ, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं जिसके परसेंटेज आते हैं उसको जॉब दे, चाहे वो जनरल हो या ओबीसी हो, SC ST हो। जो हम लोग MSc BSc MBA करके यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके लिए आप लोग क्या सोचा है इस चुनाव में? जॉब के इस पे अगर आप देखें तो इतने जो टीचर बहाल हुए हैं नीतीश कुमार के इसमें हुए थे। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते कि जॉब नहीं दिया है। आज जो इतने टीचर्स जो आपके हैं, चाहे हर घर में है,
वहाँ पर हर एक दूसरा घर जो उसके अंदर जो टीचर है वो नीतीश कुमार का दिया हुआ। ठीक है, तो एजुकेशन सबसे बड़ी चैलेंज है ना। हाँ, शिक्षा की परेशानी है, तो आपकी बात हम रखेंगे बिफोर बोथ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। शायद वो ये प्रोग्राम देखेंगे और आपकी बात सुनेंगे। इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन शायद सुनेंगे। टाइम मिलेगा। हाँ, टाइम मिलेगा तो मिल पाएगा तो जरूर देखेंगे। Okay, let's, if education's condition is so bad, can health be far behind? Let's try and find out how the health infrastructure too is crumbling here in this part of Bihar. महलिया से पूछे का हमरो दीनावा लौटी है किनाजी हमरो दीनावा। And now you want to know a glimpse of what urban infrastructure collapsing does when you don't have any traffic signals, when you simply have small lanes with traffic clogs. Take a look at this. This is part of the problem of infrastructure in a place like that. Here is an ambulance with a patient who is apparently in a very serious condition, but it's stuck in this traffic jam here in front of me. Now this is what is really the real crisis which no one can attend to in these smaller towns that are simply expanding with no infrastructure either in health or in traffic. And that is what really should concern our netas, but it will never be an election issue, I'm afraid. Has traffic ever been an election issue in any election? Here is an ambulance which is stuck because usko jane do usko. आओ 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 जाओ 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 के तबे कल्याण होई हमरा देश के तबे विकास। हाय हाय हाय, ये किस तरह की साइकिल में आप लोग सब बैठ रहे हो? कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में? 10 घंटा। कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में? कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में इतने ट्रैफिक में? हाफ एन आवर लगता है, पर इतना बहुत ट्रैफिक है। क्रेजी इज द ओनली वर्ड टू डिस्क्राइब द ट्रैफिक हियर इन दरभंगा। हर घरवा में ये ट्रैफिक का कुछ कीजिए भाई। कुछ नहीं सर, ये तो आप एम्बुलेंस आगे करें, राम भरोसे ऐसे ही रोज चलता रहेगा। एम्बुलेंस को आगे बढ़ा दिया, वो फिर जाम में पड़ गया। पेशेंट मरे जिए कोई मतलब नहीं। हाँ, पेशेंट जिए मरे कोई मतलब नहीं। ट्रैफिक का कुछ कीजिए भाई साहब। ये कौन करेगा? प्रशासन को थोड़ा चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। अरे ट्रैफिक का बाय बाय। हमरा हमरा गैया के तबे कल्याण होई हमरा देशवा के तबे। Nothing symbolizes the shambolic state of Bihar's health infrastructure than this building I'm standing in front of. This is the Darbhanga Medical Hospital Surgical and Orthopedic Ward. And this building has already been declared unsafe as long as 3 years ago. It suffered from earthquake tremors. There have been repeated notices given to it that it must be brought down, and yet it continues to serve as a surgical ward. Take a look at this building from the outside, and then I'm going to take you inside and give you a sense of just why Bihar's healthcare is in the mess that it is. Come with me. This is the condition of the ward here. Please take a look. कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? दरभंगा से या बाहर से? बल्लीपुर से आए। कितने दूर? बहुत दूर है सर हमारा। 2-3 घंटे से? हाँ। बल्लीपुर से आए हैं। हाँ। बाप रे, आप कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला। आप दरभंगा से? आप कितने दूर से? 30 किलोमीटर। वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, यही आना पड़ता है? हॉस्पिटल एक है छोटा सा, लेकिन वहाँ काम नहीं होता। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? कितने दूर है? 500 जमीन है। हाँ, 500 किलोमीटर से आए हैं। बाप रे, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है आपके यहाँ? है, लेकिन फिर भी यहाँ आना पड़ता है। ट्रीटमेंट सही मिल रही है कि नहीं? अस्पताल में मिल रही है? बराबर मिल रही है कि नहीं?
कहाँ से आए हैं आप? हाँ, कितने दूर? इस जगह से जो है 28 किलोमीटर दूर। तो यहाँ आना पड़ता है, वहाँ आपके एरिया में कुछ नहीं है? खाना भी आप ही को बनाना पड़ता है क्या? आप खाना बना रही हैं? यहाँ कुछ नहीं मिलता क्या? थोड़ा बहुत मिलता है सर, बस ज्यादा नहीं मिलता? ज्यादा नहीं मिलता सर। तो आपको खुद खाना बनाना पड़ता है? दे मेड देयर ओन स्टोव हियर। क्या हॉस्पिटल की क्या हाल है यहाँ? हॉस्पिटल का सर 20-22 दिन है, हम लोग को कोई देखना और कोई सुइया दवाई कुछ कोई नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? जनहार गोविंदपुर बगल के गांव से आए हैं? जी जी जी। Looking at the state of this hospital, I will repeat my original question. Will healthcare, hospital infrastructure ever become an election issue in a state like Bihar? Or is Bihar going to fight its elections on what some would say are the old issues of caste, of religion, of indeed so-called charismatic leadership? The question is, who is going to provide for the patients who come from miles to get proper medical treatment here at the Darbhanga Medical Hospital? This is the condition of the hospital, the premier hospital across this region of Mithilanchal and then going even into Kosi and Simanchal. Shocking is the only word one can use. कोई फैसिलिटी सुविधा मिलती है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। हाँ, नहीं? नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ता है और कोई जगह नहीं है? मजबूरी से यहाँ है ना। कितनी दूरी से आए हैं? यहाँ दरभंगे में घर है, सुंदरपुर 32। अच्छा, दरभंगे में ही घर है, लेकिन कोई सुविधा यहाँ मिलती? डॉक्टर आते हैं कि नहीं? नहीं आता, कभी कभी आता है, हमको बोलने नहीं देता है, बोल करके चला जाता है। हमको घर लाके 8 दिन से खाना वगैरह वो आप ही देता है, दाल रोटी उसी देता है। दाल रोटी मिलता है ना, या घर से लाना पड़ता है? घर से लाना पड़ता है। घर से लाना पड़ता है। तो ये चुनाव में जब वोट होगा तो किस इश्यू पे देंगे? लोग तो जातिवाद पे, ये नेता जो करते हैं कुछ ये स्वास्थ्य के लिए कुछ करते हैं क्या? शिक्षा के लिए? कि अस्पताल वैसे ही रहते हैं? वही रहते हैं सर। कोई नेता ये इन चीजों पर नहीं देखता? हाँ, नेता आते हैं, कहते हैं मेरा पावर ही नहीं है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? नहीं। चाचा बताइए, आपके हाल कैसे हैं? हाल यही है कि 15-20 दिन से मैं पड़ा हुआ। हाँ। मेरे दर्द से परेशान बड़े में कोई चाहता सर, कोई डॉक्टर नहीं कुछ करता। डॉक्टर आता है नहीं? आता है, कुछ दवा लिख देता है, कुछ सुनवाई नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता मुझे। मैं रहने वाला हूँ बिहार, यहाँ दरभंगा जाले थाना से। कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है। यहाँ पे आए तो बोल बदली करना है, तो एक बार बोले 15,000 रुपया तैयारी हो गया, फिर बोले 20,000 उसमें भी तैयारी हो गया, फिर बोले 25,000 उसमें भी तैयारी। बोले आज में हमारा कल ऑपरेशन होने का बात था, ये ले गया कागज उगाज, उसके बाद में बोलते हैं कि ये 55,000 रुपया लगेगा। 55,000 रुपये दे रहे? ये ईंट लगा है आपके लिए? डॉक्टर ने ईंट लगाया और नहीं था कुछ उनके लिए लगाने के लिए? है सर, बिस्तर भी नहीं देता है। कितना दिन से ये कितने दिन से ये बिस्तर पे है? 15 दिन। कोई बदला नहीं है बिस्तर? नहीं सर, नहीं बदला है। 15 दिन से बिस्तर भी नहीं बदला है? नहीं, कहते हैं बदलने के लिए, कहता है ही नहीं। कितने दिनों से है? 8 दिन हो गए। 8 रोज हो गए। कुछ सुविधा वगैरह मिल रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलता नहीं है। डॉक्टर आते हैं ना? नहीं, कहाँ आता है? नहीं आया डॉक्टर। खाना पीना? खाना मिलता है, चावल मिलता है थोड़ा? घर से लाते हैं क्या? नहीं, घर से नहीं लाते। पंखा भी नहीं चल रहा है, कभी चलता है कभी। ये तो पंखा चल रहा है, लेकिन वो नहीं चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 पंखा बंद है। 5 पंखा बंद है। अपना लाइन लगाया हुआ है, हम लोग अपना यूज कर रहे हैं, अपना। अब ये खुद का पंखा लाई हो? ये घर से लाई है? पंखा भी घर से लाना पड़ता है। लेटरिन कहाँ है? I won't say anything, but simply raise स्वच्छ भारत anyone? ये स्वच्छ भारत है? In a hospital, this is the condition of the latrine. What more can one say? लेटरिन क्यों गंदा है? पानी नहीं चल रहा सर। अरे हॉस्पिटल है, पानी तो चलना चाहिए। कितना पानी नहीं चल रहा, पानी चलेगा तब ना हम लोग साफ करेंगे। हाँ बोलो। इसलिए साफ नहीं हुआ रहा है? पानी नहीं है? नहीं, पानी अभी नहीं। हो गया। ये बताइए, ये हॉस्पिटल की हालत इतनी बुरी क्यों है? सर्जिकल बिल्डिंग को कंडेम्ड कर दिया गया आज 3 साल पहले ही कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। कंडेम्ड किया गया कि अब ये रहने लायक नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग रखे हुए हैं, अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है। भूकंप में क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ था, लेकिन डर था कि कहीं क्षतिग्रस्त नहीं हो जाए।
उसको हम लोगों ने खाली भी करवा दिया था। खाली कराने के बाद बहुत दिनों तक हम लोग दूसरे जगह पेशेंट सबको रखे हुए थे। बाद में चूँकि हमारा 13 OT है वहाँ पर, OT अगर नहीं चल रहा था तो सारे पेशेंट हमारे धीरे धीरे जमा हो रहे थे। तो हम लोगों ने सब लोगों से पूछ करके सो फिर उसी मकान में। लेकिन ये बताइए कि क्या अल्टरनेटिव नहीं है या प्रेशर बहुत है सिस्टम पे इसलिए ये प्रॉब्लम है? अल्टरनेटिव पानी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। बता रहे हैं जी। पानी हमारे यहाँ PhD करता है पानी का काम। मकान जो टूटा हुआ है उसका काम PWD करता है। हम लोगों ने बार बार लिखा है, 3 साल से बार बार लिखा है, लेकिन PWD ने उसको मरम्मत नहीं कराया है। PhD ने पानी के सप्लाई के लिए कुछ नहीं किया है। हमरा गैया के तबे कल्याण होई, हमरा देशवा के तबे विकास होई, हर घर में रोजी रोजगार होई। Darbhanga has a 26 or 25% Muslim population, and clearly the Muslim question haunts areas like Darbhanga and indeed large parts of Mithilanchal stretching into Simanchal and eastern Bihar. The question is, what is the future for the Muslims in this area? But there is another side to the Muslim question which came to the surface a few years ago. In 2013, the Intelligence Bureau said they had busted what they called the Darbhanga module. They said the Indian Mujahideen had made Darbhanga a center of their activities, and it was this module that was responsible for terror acts like 13/7, the train blast in Mumbai, and it was formed by Yasin Bhatkal, who's now in jail. So clearly the Muslims of Darbhanga have been in the news for the wrong reasons in recent times. How has that affected Muslim politics in the area? Let's talk to the people of this area. ये बताइए कि एक तरह से दरभंगा का एक इमेज बन गया है दरभंगा के बाहर कि जो यहाँ के जो युवा हैं वो आतंकवादियों से जुड़ गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं जब इस तरह का प्रचार होता है? बिल्कुल निराधार है, लेकिन ये प्रचार होता है। ये प्रचार गलत है, जिसने भी किया है बिल्कुल गलत, 100% गलत है। इससे क्या लोगों में गुस्सा है? हाँ, लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है और लोगों में इस तरह की बात है और ये बदनाम करने की एक साजिश है और कोई बात नहीं है। हर नौजवान आतंकवादी नहीं होता और जो आतंकवादी होता है उसका कोई मजहब कोई धर्म उसका नहीं होता। कुछ लोग तो होंगे, कुछ लड़के जो होंगे जो जुड़े हुए हैं। देखिए जो जुड़े हुए हैं वो अगर जुड़े हुए हैं तो उसका तो कोई धर्म है नहीं, कोई मजहब है नहीं, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख ईसाई, कोई भी नहीं है, वो आतंकवादी है। हाँ, तो उसका 100 में 1 अगर वैसा हो जाए तो पूरा दरभंगा वैसा नहीं होता है। ये जो बीफ बैन का इशू जैसे निकला है, इंदिरा जी ने इसको पार्लियामेंट से पास करा दिया, 1955 में ये बंद हो गया। ये बीफ चल कहाँ कट रहा है? ये जो लोग उठाए हैं पहले इसको साबित करें। और सप्लायर कौन है तो आप बंद कीजिए ना। देखिए ये नेता तो चाहते ही हैं कि हम हिंदू मुसलमान का और मुसलमानों को दहशतगर्द करके अपना उल्लू सीधा करें, बस उल्लू सीधा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, वहाँ मदरसा को ज्यादा पैसे देते हैं हिंदू। ये सही है या नहीं? बीजेपी वाले तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट की बात करते हैं। ट्रू सेंस में नीतीश कुमार वो बिहार का विकास किया है, मुसलमानों का भला हुआ है। मैं जब सच्चर रिपोर्ट देखता हूँ, सच्चर रिपोर्ट में देखा जाता है कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति जो है वो हिंदुओं से बहुत कम है, और तो फिर क्या फायदा हुआ है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो बिहार में तो 25 साल से तो नीतीश और लालू की सरकार रही है। नीतीश के वक्त में विकास हुआ है और पढ़ाई के क्षेत्र में भी मुसलमानों को जो सेफ्टी मिलना चाहिए वो दंगे बंद हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, विकास हुआ है। इस नाम पे सारे हिंदू मुसलमान जो सेकुलर है। दरभंगा में इतने सालों में कभी दंगा हुआ है? नहीं हुआ। नहीं। तो ये मुझे बताइए, जब इंडियन मुजाहिदीन जैसे ग्रुप आते हैं, आतंकवादी ग्रुप आते हैं और उसमें मुस्लिम बच्चे शामिल होते हैं, तो क्या कहेंगे फिर आप? आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, उसको कुछ ही मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना। हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। अरे वाह, तालियां दे साहब।
ये बड़ी बात कही आपने। आप तभी विश्वास करेंगे सबका साथ सबका विकास जब साक्षी महाराज जैसे लोगों को हटाया जाएगा। राजेश, मुस्लिम नेताओं ने भी गुमराह किया है आपको या नहीं? है कि जो है उनकी बात हम लोग सुनते ही नहीं है ना। आप सुनते नहीं हैं उनकी बात? बातों को कहाँ सुनते हैं? After driving out of Darbhanga, I've come to a small village of Sakhwar, and this is where I have to meet a special guest. For the last 25 years, I've had an assistant, someone who has driven me around for the last 25 years and done it unfailingly, day after day, with enormous hard work. Ramesh Mandal works with me, and he really has been my major domo over these last 25 years, and he comes from Darbhanga, and he's insisted when I was coming here that I go and meet his family here in village Sakhwar. So I've come to meet his father. Surajji, namaskar. नमस्कार। He and his 4 children. कहाँ है बेटा? कहाँ है तो आपका? सब है यहाँ? जी है भाई ब्याजी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। चलिए आइए। घर बड़ा पक्का बना दिया है? नहीं, हमारा घर नहीं है, हमारा भाई जी का घर है। मंडल ने बहुत मेहनत करके किया। गरीब आदमी मंडल है। अभी तो आपका पोता कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा तो कृपा होता है। नहीं, ये फर्क पड़ेगा नहीं है? खुद का जमीन होना चाहिए, घर जो होता है। इतने सालों में जमीन नहीं है? क्यों? किसी के बाद तो आप सब जमीन हम लोगों को पर्चा दे दिया है। दिस इज एन एंटायर विलेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स एज दे आर नाउ पॉइंटिंग आउट टू मी। जमीन किसी और का है और आपको आपका जमीन नहीं है? रखने के लिए दिया हुआ है। हाँ, बस उस पे हम लोग रह रहे हैं और कोई वर्क है ही नहीं। शहर जाना, दरभंगा जाना कहीं नहीं? दरभंगा वो कुछ नहीं, हम लोग के लिए अपना बिहार कंट्री ही छोड़ना पड़ता है, अदर स्टेट जाना पड़ता है, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है। Three of his grandchildren, who are Ramesh's children, who works with me, they all went to Kendriya Vidyalaya. As I said, all now fluent in English, and all have aspiration. It's the great Indian story. Everyone has aspiration. They want to grow out of this village and move ahead and find at least a piece of land that they can call their own. I'm delighted to be here with this family. I'm going to have a cup of tea with them. And then at the very end, there is one more thing that you have to do in Darbhanga. सुना है मछली बड़ी अच्छी मिलती है दरभंगा में? मिलती है। मैं जाने वाला हूँ दरभंगा में शाम को मछली खाने। चुनाव होने से कोई फर्क पड़ता है? लालू हो या नीतीश हो या नरेंद्र मोदी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है? बस वादे करके आते हैं। रोड देखिए ना सर कैसा है। अरे पर अच्छा रोड तो हाईवे तो बना दिया। ग्रामीण रोड देखिए, ग्रामीण रोड में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ हाईवे पे फर्क पड़ा है। जी जी। बिजली मिलती है कि नहीं? अब बिजली तो रहती है। बिजली तो वन ऑफ द बिग changes that has taken place in this part of Bihar. We keep saying that rural electrification, more and more villages are electrified, some for as long as 22 hours. हाँ, मखाना किसका बनता है? पानी होता है सर, पानी होता है, जमीन होता है, पानी में उगता है ये। Okay, so makhana is what I have to eat after this. हमने खाई कर रखा है ना, बैगन है। Namaste. Okay, we are here at a friend's house for our final dinner sequence where we are going to have fish because we are told that Mithila's or the ancient kingdom of Mithila's national symbol, royal symbol was the fish. क्यों? मछली? Yes. Huh? So therefore I'm being given a painting where you can see the fish. आप बताइए ये मछली का क्या सिग्निफिकेंस है मिथिला में? इसको शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है, अच्छे चीज के लिए। मेरी यहाँ शादी भी होती है तो शादी के 4 दिन के बाद मछली का भार जाता है, माने मछली भेजा जाता है लड़की वाले लड़की वाले के पास भेजते हैं।
तो और हर समाज, हर जात के लोग मछली खाते हैं। yes. हाँ, मिथिला में मछली सब खाते हैं। हाँ, सब खाते हैं। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, फिशिटेरियन होते हैं सब। यस, फिशिटेरियन होते हैं। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ शैव, शाक्त और वैष्णव। और सब मछली खाते हैं? नहीं, वैष्णव तो नहीं खाएंगे। हाँ, बाकी सब खाते हैं। बाकी सब खाते हैं। ओके, विरोध नहीं है किसी का। किसी का विरोध नहीं है मछली से। नहीं। ओके, सो इट्स द फिश which is our preferred food for this evening. So we're going to have a fish meal as we come to an end of a very long day across Mithilanchal. और मनवी सब लोग थे वहाँ, हम रात में देख रहे रात हुई, बात हुई, मछली हुई। चलिए सब बैठो यार, सब बैठो। होगा जी, ये इसका नाम है बंग द्वार। तो ये है मछली। ये मछली ये कहाँ से आती है? ये मछली कहाँ, तालाब से आती है या गंडक से आती है? नहीं, तालाब से। यहाँ इस शहर के अंदर तालाब बहुत बड़े तालाब हैं, जो मशहूर तालाब है यहाँ। तो दाल, मछली और चावल, ये आपका माछ भात हो गया। आई मस्ट कन्फेस, आई एम फीलिंग लाइक द राजा ऑफ दरभंगा टुडे, क्योंकि राजा ऑफ दरभंगा जो होता है वो आप इसी तरह से मेरा ख्याल रख लें जैसे राजा ऑफ दरभंगा मैं हूँ नहीं, मैं पत्रकार हूँ। ये है कि यहाँ की जो तालाब है उसकी फिश होती है, इसीलिए यहाँ मतलब मछली है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। वंडरफुल फिश मील, बेस्ट वे टू एंड अ लॉन्ग डे। थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फ्रॉम द एंटायर टीम एट ग्राउंड जीरो बिहार फ्रॉम दरभंगा, दिस इज राजदीप सरदेसाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Bye for now. आ जाओ सर, सब आ जाओ। सब का